Okay, everyone will mark the presentee now so that I can start with the students who are more in number. Harmanjot, fifth, Deepika from seventh. Okay, Shreyanshi fifth, Daksh fifth, Harshpreet fifth, Pranav, you are from seventh, na? Please mention, na? Harmanjot fifth. Okay. Yes. Till now. Okay. Fifth and seventh standard students are there. No one is here from standard sixth, right? Yes. Okay. See, still we are having combined class cause very few students are there from standard seventh. I know standard seventh is a higher standard, so we should have a separate class. Once the number will reach up to 9 to 10 students, then we will be separating standard 7th. Okay, and for the new students which have joined today, here is one notification for you that we are following the NCRT syllabus. Like I think from third standard or from fifth standard, everyone is having the NCRT books. Cause I'm noticing that some I have found out while teaching some some students like second and third, fourth students. Okay, okay. If your book is not NCRT, uh, it's up to you. But see, every book, every school has their own syllabus as far as the CBSE is considered. सबने अपना खुद का syllabus define किया हुआ है and they have to follow the NCERT rule. उनको syllabus वही लेना है. आपका बुक अलग हो सकता है, आपके लेसन्स उलट पुलट हो सकते हैं, समटाइम्स आपके सिलेबस भी टोटली डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स है दे कांट अवॉइड दैट. सो while learning science and maths, learn the concepts. Okay, we are following NCRT because many students are there and we can't go by that कि श्रेयांशी का बुक लेना है and I'll start teaching then बाकी के students का क्या. So वी आर नॉट गोइंग बाय दैट वे. हम लोग एनसीईआरटी सिलेबस फॉलो करेंगे जो कि सीबीएसई के लिए अलॉटेड है. ओके, चलिए वी विल स्टार्ट विथ स्टैंडर्ड फिफ्थ. ओके, वी हैव started your lesson number 3. Okay, chalo. Okay, this was we were discussing कि नीतू को ग्लूकोज वाटर दिया गया था and all the questions we have done with that. Okay, now next is Martin's window. Shreyanshi, will you read this for me? Yes, it's Yes, ma'am. please. Here's an old story. It seems so funny. There was a window in Martin's tummy. Actually, by mistake, Martin's was shot. Right in the stomach, it bled a lot. The wound slowly heated Healed. healed and was covered by skin, but the hole was still there. You could peep right in. Oh, what a chance for doctors to study what happens to the food inside the body. The story seems odd, but it's really true. The secret of Martin's stomach helped us all, me and you.
ओके, सो यहाँ पे एक पोएम दिया गया है एकदम मजेदार, जिसमें कि मार्टिन एक था, उसको एक शॉट किया गया जिसकी वजह से उसके स्टमक में होल हो गया। वो होल तो कवर हो गया स्किन से, लेकिन यस, जख्म थी वो भर गई स्किन से, लेकिन ये बताया गया कि उसमें होल वैसे का वैसा ही रहा, सो दैट डॉक्टर्स को ये पता चले कि फूड एक डॉक्टर को एक जरिया मिल गया ये स्टडी करने का कि स्टमक के अंदर फूड के साथ क्या क्या होता है। इट्स जस्ट अ पोएम। सी स्टोरी, अ स्टमक विथ अ विंडो। इन द पोएम यू रीड अबाउट अ सोल्जर कॉल्ड Martin. In 1822, he was 18 years old and was very healthy. Okay, I think the story is true. Let's read. When he was shot, he got seriously hurt. At that time, Dr. Beaumont was called to treat him. Dr. Beaumont cleaned the wound and put up the dressing. After 1.5 years, the doctor found that Martin's wound had healed except for one thing. He had a big hole in his stomach. See, ये स्टोरी जो अभी पोयम में श्रेयांशी ने हमें सुनाई, वो एक मार्टिन, एक जो सोल्जर है उसके बारे में है, जिनको 1822 में गोली लगी थी जब वो हेल्दी थे। ओके, तो उनके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर बेमॉन्ट को बुलाया गया। उन्होंने ड्रेसिंग की और वो 1.5 ईयर में उनका जो भी वुंड था वो हील हो गया। यस, एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम, डाउट? प्लीज डू नॉट पुट ऑन योर माइक। जब तक मैं ना बोलूं कोई भी अपना माइक एंड कैमरा ऑन नहीं करेगा। सो जख्म तो भर गया, हील हो गया, लेकिन एक स्ट्रेंज बात हुई कि उनके स्टमक में एक बड़ा सा होल रह गया। द होल वॉज कवर्ड विथ लूज फ्लैप ऑफ स्किन लाइक द वॉशर इन अ फुटबॉल। एकदम बहुत लूज स्किन से वो कवर था होल। प्रेस द स्किन एंड यू कुड पीप इनटू द मार्टिन स्टमक। अगर आप वो स्किन प्रेस करते तो आपको मार्टिन के स्टमक के अंदर क्या है वो दिखता था। नॉट ओनली दैट, द डॉक्टर कुड ऑल्सो टेक आउट फूड फ्रॉम स्टमक बाय पुटिंग अ ट्यूब इन द होल। और ट्यूब डालते अगर पेट में, स्टमक में, तो वो खाया हुआ खाना भी बाहर निकाल सकते थे। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट फेल्ड he had found a treasure. Can you guess how much time he spent on doing different experiments on the stomach? 9 years. During this time, Martin grew up and got married. See, जब गोली लगी थी एंड ये जो चीजें हो रही थी तब मार्टिन 18 ईयर्स के थे। तो डॉक्टर ने क्या किया, उनके उनको एक ट्रेजर ही मिला, राइट। एक डॉक्टर के लिए ये बहुत बड़ी चीज थी कि डायरेक्टली पेशेंट के पेट में होल मिला है और उसमें जो जो चीजें हो रही है वो स्टडी कर पाते थे, तो उनके लिए एक खजाना मिल गया था। तो उन्होंने इनका उसका बहुत फायदा लिया और अबाउट 9 ईयर्स, पूरे 9 साल तक, जब तक मार्टिन की शादी भी हो चुकी थी, तब तक वो उसे पढ़ते रहे, उसका स्टडी करते रहे। एट दैट टाइम साइंटिस्ट डिड नॉट नो हाउ फूड वाज डाइजेस्टेड। 1822 का टाइम था, साइंटिस्ट को नहीं पता था कि फूड जो भी अंदर जाता है उसका डाइजेशन कैसे होता है। हाउ डज द लिक्विड दैट इज डाइजेस्टिव जूसेस इन स्टमक हेल्प। हमारे पेट में जो भी डाइजेस्टिव जूसेस है वो डाइजेशन के लिए किस तरह हेल्प करते थे वो भी उन्हें नहीं पता था। डज इट ओनली हेल्प इन मेकिंग द फूड वेट एंड सॉफ्ट और डज इट ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन। उन्हें ये भी नहीं पता था कि सिर्फ वो हमारे खाने को गीला एंड सॉगी सॉफ्ट करते हैं या फिर डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, ये भी उन्हें नहीं पता था। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट took some liquid juices out of the stomach. He wanted to see what would happen to a food item kept in a glass filled with it. Would it get digested on its own? For this he did an experiment. So उन्होंने, देखिए आपको पिक्चर में दिख रहा होगा मार्टिन के पेट में कैसे फ्लिप हो रही है स्किन और उसके अंदर होल हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, ये जो लिक्विड जूसेस है डॉक्टर ने स्टमक के बाहर निकाले। उन्हें देखना था कि जो अगर
स्टमक के अंदर ही ये डाइजेशन होता है, या फिर ये फूड आइटम्स, ये जो जूसेस है वो ग्लास में निकालने से ग्लास में भी ये फूड डाइजेस्ट हो पाते हैं? ओके, ये उन्हें स्टडी करना था. सो व्हाट ही डिड फॉर दैट, with the help of a tube he took out some digestive juice from stomach. At 8:30 a.m. he put 20 tiny pieces of boiled fish in 10 milliliter of the juice. उन्होंने क्या किया, डाइजेस्टिव जूस निकाला मार्टिन के पेट में से, और 8:30 एएम को सुबह 8:30 बजे छोटे छोटे फिश के बॉईल किए हुए टुकड़े उसमें डाले, 10 मिलीलीटर ऑफ जूस में डाले. ही केप्ट द ग्लास एट द सेम टेम्परेचर एज दैट ऑफ अवर स्टमक. स्टमक का जो भी टेम्परेचर होता है 30 डिग्री, उसी टेम्परेचर पे उन्होंने ग्लास को रख दिया. When he checked at 2 p.m. he found that the pieces of fish has dissolved. और उन्होंने 2 बजे, दोपहर के 2 बजे देखा तो उन्हें ये दिखा कि छोटे छोटे फिश के जो टुकड़े थे वो डिजॉल्व हो चुके थे. सो इसका क्या मतलब हुआ कि वो क्या हो चुके हैं, डाइजेस्ट हो चुके हैं, राइट? यस, फिफ्थ स्टैंडर्ड, एम आई राइट? व्हाट आई एम आस्किंग, आर यू लिसनिंग? ओके, नो वन इज देयर फ्रॉम स्टैंडर्ड सिक्स ना? सिक्स स्टैंडर्ड से कोई है? प्लीज लेट मी नो. Okay. Mark your presentee. You are from fifth, na, Harshit? I am asking about sixth. Sixth. Okay, see. Dr. Beaumont tried this experiment with different food items. He gave Martin the same food at the same time and then compared how long it took for food to be digested in the glass and in Martin's stomach. He recorded his observation in table. तो उन्होंने क्या किया, हर बार वो अलग अलग फूड आइटम्स के साथ ये स्टडी करते. जो भी फूड आइटम्स वो ग्लास में डालते वही फूड आइटम वो मार्टिन को खाने को देते, और उसी तरह से मार्टिन के पेट में कितना वक्त लगता है डाइजेशन के लिए, एंड ग्लास में कितनी देर में डाइजेशन होता है, ये वो स्टडी करते थे. सो हियर इज अ पार्ट ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन टेबल. ओके, तो ऑब्जर्वेशन टेबल रीड करना है. समवन प्लीज रीड दिस ऑब्जर्वेशन टेबल. आई विल, हर्षित आप रीड करोगे? हर्षित, हर्षित, will you read? Please put on your mic then. आपको रीड करना है फूड आइटम का नाम, इन स्टमक में कितना टाइम लगा, एंड ग्लास विद डाइजेस्ट, ग्लास में कितना टाइम लगा डाइजेशन के लिए. पढ़िए. यस, दीपिका, विल यू? यस दीपिका, प्लीज रीड. आई कैन नॉट हियर यू. कैन यू ऑल हियर हर? दीपिका की आवाज आपको सुनाई दे रही है? No, ma'am. Yes, actually, I'm also not able to hear. I think some network issue is there. Others, please. Yes, Sanvi. Sanvi, Yes, ma'am. you're from which class? Ma'am, I'm from seventh. Okay, will you read this table for me? Yes, ma'am.
Okay, everyone, please listen to Sanvi carefully. Okay, Sanvi, start. Number of food items. First, unboiled milk. In the stomach, 2 hours and 15 minutes. In the glass with digestive juices, 4 hours and 45 minutes. Second, boiled milk. 2 in the stomach, 2 hours. In the glass with digestive juice, 4 hours and 15 minutes. Third, full boiled egg. In the stomach, 3 hours 30 minutes. In the glass with digestive juices, 8 hours. Fourth, half boiled egg. In the stomach, 3 hours. In the glass with digestive juices, 6 hours and 30 minutes. Fifth, raw egg beaten. In the stomach, 2 hours. In the glass with digestive juices, 4 hours and 15 minutes. Sixth, raw egg. 1 hour, 30 minutes in the stomach. In the glass with digestive juices, 4 hours. Okay, thank you. Okay, so everyone, please do listen to the question. So, what does our stomach do? Comparison में, what do you think? Stomach is digesting rapidly or a glass with digestive juice is digesting rapidly? Ma'am, stomach. Yes, a stomach is digesting much more earlier than the glass. Okay, Dr. Beaumont did many experiments and found many secret about digestion. He found that food digests faster in the stomach than outside. Did you notice this? This is in table. Yes, we have noticed. Our stomach churns the food to digest it. The doctor also saw that the food did not digest properly when Martin was sad. He also found that the juice in our stomach is acidic. Have you heard of anyone talking about acidity? Especially when that person was not eaten well or the food is not digested properly. See, हमारा जो stomach है वो फूड को चर्न करते हुए उसे डाइजेस्ट करता है एंड जब कभी मार्टिन सैड था तब डाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ था एंड उन्होंने देखा कि जो जूस है वो एसिडिक है। आपने कभी सुना है कोई बोलता है कि हाँ मुझे बहुत एसिडिटी हुई है, मैंने आज ये खाया तो मुझे बहुत अनईजी फील हो रहा है? हैव यू एवर हर्ड? अपने मम्मी पापा से वगैरह सुना होगा क्योंकि अब तक आपको तो वो प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा क्योंकि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वर्किंग वेरी प्रॉपरली क्योंकि आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो। यस, नो श्रेयांशी, ओके फाइन। So his experiments become famous across the world. After this, many scientists did many such experiments. What did you say? No, they did not shoot people in the stomach. Nor did they wait for a patient with a hole in the stomach. They used other scientific ways to look inside the body. Did you like the story of Martin or should we say the story of our own stomach? Okay. तो ये जो ब्यूमॉन्ट थे उनके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने स्टडी किया। तो उनके इसके लिए उन्होंने जो भी पेशेंट ले उनके व्हाट डू यू थिंक उन्होंने शॉट किया उन पेशेंट को पेट में एंड देन होल किया? व्हाट डू यू थिंक? नो ना, मार्टिन वॉज एक्सीडेंटली शॉट, नो, उन्होंने वैसा कुछ भी नहीं किया। बट दे फाउंड आउट सम अदर साइंटिफिक वे टू लुक इनटू आवर बॉडी, इनसाइड आवर बॉडी। उन्होंने और अच्छे अच्छे वेज ढूंढ के निकाले सो दैट दे कैन लुक इनसाइड द बॉडी। So, did you like the story of Martin's stomach or our stomach? Yes. Did you like the story? Yes. Okay. And fifth standard, what about you? Seventh standard is replying, and what about the fifth standard students? Okay. Thank you. Now, imagine if you had been in place of Dr. Beaumont, what experiments would you have done to find out secrets of our stomach? Okay. Now, आप में जो साइंटिस्ट है उसको उठाइए और मुझे बताइए, अगर आप उस डॉक्टर की जगह पे होते तो आप कौन से एक्सपेरिमेंट करना चाहते? Whatever you want, tell me. I'm not giving
लाइक अगर किसी को राइट आंसर है तो उसे मेडल देना है, एंड जो रॉन्ग बोल रहा है उसे आई एम स्कोल्डिंग, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग ऑफ दिस। एवरी आंसर इज एक्सेप्टेबल। सी, यहाँ पे आप हमें आपको मुझसे इंटरेक्ट करना है तो प्लीज। ओके, हरदीप, आई फॉरगॉट द स्टूडेंट्स नेम। हर्षप्रीत, ओके हर्षप्रीत, आई एम आस्किंग अबाउट स्टमक। स्टमक में आप क्या करना चाहते हो? ओके दीपिका, जंक फूड एंड राइस, वेरी गुड। कि जंक फूड का किस तरह डाइजेशन होता है एंड राइस का, राइट? ओके, एनीवन एल्स? ओके, आप एसिड्स के बारे में पढ़ते, ओके गुड। गुड फूड, गुड हेल्थ। Dr. Aparna has two patients, Rashmi and Kailash. Dr. Aparna talked to them to find out more about them. Read what the doctor found. सी, कैलाश एंड रश्मि के बारे में देखिए। रश्मि 5 years की है एंड कैलाश का एज है 7 years। ओके, लेट्स रीड अबाउट रश्मि। शी लुक्स अबाउट 3 years old। आप देख सकते हो रश्मि इज 5 years old, एंड बाय सीइंग हर बॉडी फीचर्स she is looking like 3 years old child. She has very thin arms and legs and a pot belly. Stomach is like balloon and she often falls sick, और वो हमेशा बीमार रहती है। She always feels tired and cannot go to school regularly. हमेशा उसे थकावट रहती है एंड वो उसकी वजह से रोज स्कूल नहीं जा पाती। She does not have the strength even to play. खेलने के लिए भी उसमें ताकत नहीं बची। Food. She is lucky if she can get a little rice or one roti to eat in the whole day. वो like उन्हें खाने के लिए अगर दिन दिन में थोड़ा सा राइस या फिर एक रोटी मिल जाए वही बहुत है उसके लिए। तो उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है दैट इज नॉट गुड। देखिए कैलाश की तरफ देखिए, ही लुक्स ओल्डर देन हिज एज। ये 7 years का है लेकिन अगर आप पिक्चर देखोगे तो वो बहुत बड़ा लगता है। हिज बॉडी इज फ्लैट एंड फ्लैबी। वो बहुत ज्यादा मोटा है। ही हैज पेन इन हिज लेग्स। उसके पैर दुखते रहते हैं। ही इज नॉट वेरी एक्टिव। वो ज्यादा एक्टिव भी नहीं है। ही गोज टू स्कूल बाय बस एंड स्पेंड्स मेनी आवर्स वॉचिंग टीवी। वो स्कूल बस में जाता है एंड बहुत सारे अपने जो भी टाइम है वो पूरा टीवी देखने में बिता देता है। फूड, he does not like to eat home cooked food like dal rice, vegetable and roti. उसे घर में पका हुआ दाल राइस, सब्जियां एंड रोटी नहीं खानी होती है। The only thing he find tasty are chips, burger, pizzas and soft drinks from the market. उसे सिर्फ चीज बर्गर, चिप्स बर्गर पिज्जा खाना अच्छा लगता है। Dr. Aparna measured the height and weight of both the children. Then she told them there is only one treatment for both your problems, proper food. सो उन्होंने हाइट एंड वेट मेजर किया तो डॉक्टर ने ये ट्रीटमेंट सुझाया कि आपको एक ही ट्रीटमेंट मिल सकता है कि आपको प्रॉपर फूड लेना है, अच्छा खाना खाना है। नाउ टेल मी, व्हाई डू यू थिंक रश्मि कुड नॉट ईट वन रोटी इन द होल डे? रश्मि कुड ईट ओनली वन रोटी इन द होल डे। यस, टेल मी, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस? कि रश्मि को दिन भर में एक ही रोटी खा पाती थी। तो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस? रेज योर हैंड फॉर दिस। Because she is weak, okay, but see what they have told us. She is lucky if she can get little rice or one roti. शायद उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है। यस, दैट्स व्हाई अगर एक नो, एक्चुअली दीपिका, हर डाइट इज नॉट मोर देन वन रोटी इज नॉट द थिंग। वहां पे लिखा गया है कि शी इज लकी
कि उसको एक दिन में थोड़ा सा राइस या फिर एक रोटी मिले, इसका मतलब है कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इज नॉट गुड। अगर वो प्रॉपरली खाना मिलता तो वो ठीक होती। ओके, इसलिए डू यू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स? आपको लगता है कि कैलाश को गेम्स एंड स्पोर्ट्स पसंद होंगे? फिजिकल गेम्स आई एम आस्किंग अबाउट, फिजिकल, नॉट ऑन मोबाइल एंड ऑल। नो, एब्सोल्युटली नॉट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉपर फूड? आपको क्या लगता है, व्हाट इज मीन बाय प्रॉपर फूड? Yes, proper food is, yes, proper food is balanced diet, which yes, balanced good diet which includes all the healthy food which are homemade and which are nutritious too. Yes, all the food which is providing all the nutrition to the body. Why do you think that the food of Rashmi and Kailash was not proper? Yes. See, because Rashmi was not getting enough quantity of food. She was eating rice and roti, but जो भी quantity मिलती थी वो enough थी क्या उसके लिए? बताइए। No, she was getting very little ना। ऐसे लिखा गया है कि अगर एक दिन मिले तो वो बहुत उसे बहुत नसीब वाला माना जाता था। इसका मतलब है कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन नहीं थी कि वो अफोर्ड कर पाए। ओके, ऐसे बताया गया है। तो अगर वो खा रही है राइस एंड रोटीज, वो प्रॉपर है, हेल्दी है, लेकिन उसको क्वांटिटी नहीं मिल रही थी। और इधर कैलाश क्या कर रहा था, क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी उसके पास, लेकिन वो फूड हेल्दी नहीं था। राइट? एम आई राइट? यस। ओके। Okay. Now fifth standard. Write one thing. What is a proper diet, or what do you mean by proper food, and what nutritions should be involved in your everyday food? I have taught you this, the nutritious nutritions in food. Okay. Write about this and seventh standard. Raise your hands now. Seventh standard. Let me know how many are there. Sanvi, Deepika, and Pranav, na? Yes, standard seventh, raise your hand. Deepika, you are also from seventh, right? Yes, ma'am. Okay, and one more is there. Who's these students? Who's this whom I have a pin ki Sathe Shivaji? Let me know the student's name. आपने present ही नहीं mark किया, I think. Okay, Harmanjot, yes, you are right. Please write it in your notebook. Yes, I'm not getting the name. Maroon. Put on your mic and tell me. Mrunmayi Kadam. Okay. Okay. Always you enter the class. अगर आपको लेट हो रहा है फिर भी क्लास में एंटर करने के बाद mark your present. So here four students are there from standard seventh, right? Sanvi, Pranav, Mrunmayi, and Deepika. Yes. Okay. Okay. We are dealing with the lesson number 2, nutrition in animals.
Okay, yes. So we were learning about the tooth type of teeth we are having. Okay. Then yes, this one is also done. Starch and saliva, sweets and tooth decay. How your teeth start decaying? Let's learn about that. Normally, bacteria are present in our mouth, but they are not harmful to us. However, if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. Normally तो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते ही हमारे मुंह में, लेकिन अगर हम उनको खाने के बाद क्लीन नहीं करते, if we are not cleaning the mouth and teeth, then the harmful will also start growing. These bacteria break down the sugars present from the leftover food and release acids. Okay, तो ये जो बैक्टीरिया है वो हमारे दांतों के कोने कोने में जो भी फूड आइटम्स चिपके हुए रहते हैं उनमें उनको ब्रेक डाउन करते हैं, उनमें प्रेजेंट हुए और उनमें जो प्रेजेंट शुगर्स है उनको दे स्टार्टेड ब्रेक डाउन, एंड जो ब्रेक डाउन के बाद वो क्या करते हैं, एसिड रिलीज करते हैं. द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, और धीरे धीरे ये जो तैयार हुआ हुआ एसिड है वो हमारे टीथ को डैमेज करने लगता है, एंड हम उसे टूथ डीके बोलते हैं. If it is not treated in time, it causes severe toothache and in extreme cases result in tooth loss. अगर वो उसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाए समय रहते ही, तो वो हमारे दांत बहुत दर्द होने लगते हैं, एंड एक्सट्रीम केस में हमें वो दांत गवाना भी पड़ता है. चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक, अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट ऑफ टूथ डिके. तो वो चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक एंड अदर जो शुगर प्रोडक्ट है वही ज्यादा से ज्यादा टूथ डिके के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं. Therefore, one should clean the teeth with brush or the tooth and dental floss, a special strong thread which is moved between two teeth to take out trapped food particle at least twice a day and rinse the mouth after every meal. Also, one should not put dirty fingers on any unwashed object in the mouth. So, हमें दातून या ब्रश से 2 बार ब्रश करना है, एंड डेंटल फ्लॉस यूज करना है, जो भी एकदम स्ट्रॉन्ग थ्रेड रहता है दो दांतों के बीच डालने के लिए, उनको साफ करने के लिए, जो भी ट्रैप फूड है उसको निकालने के लिए, एंड उसे दिन में 2 बार यूज करना है, एंड कोई भी डर्टी फिंगर या फिर अनवॉश्ड प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट मुंह में नहीं डालना है. Sometimes when you eat in hurry, talk or laugh while eating, you may cough, get hiccups, or a choking sensation. This happens when food particles enter the windpipe. See, कभी कभी जल्दी जल्दी में खाते वक्त या फिर खाते वक्त हंसना बोलना, हमारे इन आदतों की वजह से हमें हिक्कप आते हैं, ये लाइक चोकिंग हो रही है ऐसे भी लगता है. तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो फूड पार्टिकल है वो हमारे विंड पाइप में चले जाते हैं. द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम नोस्ट्रिल टू द लंग्स. विंड पाइप का काम है जो भी एयर है वो नोस्ट्रिल से लेकर लंग्स तक पहुंचाना. इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप, और वो विंड पाइप हमारे फूड पाइप के एकदम बाजू में चिपका हुआ रहता है. बट इनसाइड द थ्रोट, एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज. लेकिन गले से जाते वक्त हवा एंड खाना एक कॉमन पैसेज ही शेयर करता है. देन हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप. तो विंड पाइप्स में जाने के तो हमारा खाना फूड पाइप के वजह विंड पाइप में क्यों नहीं जाता. सी, ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ सॉल्विंग, a flap-like valve closes the passage of windpipe and guides the food into food pipe. See, हमारा मेकानिज्म कितना हायर लेवल पे है. जब हम खाना सॉलो करते हैं तब एक फ्लैप लाइक वॉल्व रहता है जो क्लोज हो जाता है विंड पाइप के लिए, एंड फूड पाइप के लिए वो ओपन हो जाता है, वो और वो हमारे खाने को फूड पाइप की तरफ जाने के लिए गाइड करता है. इफ बाय चांस food particle enter the windpipe, we will choke, get hiccups or cough. और कभी कभी अगर गलती से अगर कोई भी पार्टिकल फूड का चला जाए, हम बोलते हैं जल्दी जल्दी में खाते हैं, तो इसके वजह से हमारी ही बॉडी का मैकेनिज्म परफेक्ट ही है,
लेकिन कभी कभी हमसे गलती होती है, इसलिए वो खाना इधर उधर चला जाता है, थोड़ा सा खाना विंड पाइप में गया तो हमें हिकअप्स आने लगते हैं, कफ आने लगता है, और वी may feel choke up sometimes. Okay, understood? Understood till here? Standard 7, Tipika, Sanvi, Mrunmayee, Pranav. Yes? Okay. Regions of the tongue for different tastes. Do you know आपके टंग में मैंने आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर एक पिक्चर बताया था जिसमें टंग में अलग अलग रीजन होते हैं अलग अलग टेस्ट के लिए. डू यू नो दिस? I have showed you the picture. Yes, those who were present in the previous session, they know. Okay. So here is one activity for you. Prepare a separate sample of sugar solution, common salt solution, lemon juice, and juice of crushed neem leaf or bitter gourd. Blindfold one of your classmates or ask him to take out the tongue and keep it in straight and flat position. Use a clean toothpick to put above sample one by one on different areas of tongue as shown. Use a new toothpick for each sample. Ask the classmate which area of the tongue could detect the sweet, salty, sour and bitter substances. C. यहाँ पे ये बताया गया है कि एक एक्टिविटी में शुगर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस एंड बीटर, कोई भी बीटर टेस्ट वाला नीम लीफ का सॉल्यूशन लेना है. टूथपिक से टंग में जो भी रीजन दिखाए गए हैं वहां पे थोड़ा थोड़ा ये सॉल्यूशन रखना है, और आपका क्लासमेट बताएगा कि वहां पे उसने कौन सा टेस्ट फील किया. ओके, सो if you don't know, should I show you the picture again? Yes, and the test wala picture. How you can easily find it on Google. Okay, will you or should I show you? Yes, I have showed in the previous session. If you want, I will. Should I show you or you will find out by yourself? I'm asking those who have joined today. Okay, I'm asking standard 7. Please let me know. Should I go on? Deepika, Sanvi, Mrunmayee, Pranav was there in the previous session. Those who have joined now. Okay, no response. I'm going. The food pipe और esophagus. So ये food pipe और esophagus क्या होता है? The swallow food passes into the food pipe or esophagus. Look at figure 2.2. See, जो भी हम खाना हमारी बॉडी में लेते हैं मुंह से, वो हमारे फूड पाइप या ईसोफेगस से, दिस इज ईसोफेगस, हमारी स्टमक के ईसोफेगस थ्रू स्टमक के पास जाता है. द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट. Paheli wants to know how food moves in the opposite direction during vomiting. Okay, can you answer? See, हाँ, जब हम खाना खाते हैं सो फूड पाइप जो ईसोफेगस है उससे लेकर स्टमक, देन इंटेस्टाइन, देन ऑल डाइजेस्टिव जूसेस कम्स एंड देन डाइजेशन ऑकर्स. दिस प्रोसेस वी ऑल नो. बट व्हाट अबाउट वोमिटिंग? वोमिटिंग में तो खाना बाहर आ जाता है पूरा, तो रिवर्स पे कैसा होता होगा? यस सानवी. Ma'am, when food is not accepted by the stomach, it comes out of our mouth. Okay, but Paheli wants that how it comes out.
Okay, Ma'am, let's see. हाँ. ma'am, it comes out through the esophagus. Okay, let's see. See, the food pipe runs along the neck and the chest. हमारी जो neck है and chest है वहाँ पे food pipe रहता है. Food is pushed down by movement of wall of the food pipe. फूड पाइप हमेशा मूव हो, फूड पाइप की जो वॉल है हमेशा इट इज इन मूविंग कंडीशन. सो ये हमारा खाया हुआ खाना आगे जाता रहता है. एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड. तो सही में तो ये जो मूवमेंट है वो पूरे एलिमेंट्री कैनल में चलती रहती है एंड जो खाना खाते हैं हम आगे आगे नीचे नीचे जाता रहता है. At times the food is not accepted by our stomach, it is vomited out. जब हमारे पेट में वो हमारा पेट वो फूड उस फूड को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है तब वो बाहर निकल जाता है. रिकॉल द इंस्टेंसेस व्हेन यू वोमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीजन फॉर इट. डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड टीचर. सो व्हाट डू यू थिंक कि वोमिटिंग क्यों होता होगा? कोई भी रीजन हो सकता है, आप अपना बताइए. समटाइम यू मे हैव वोमिटेड. यस. Okay, I will tell mine. Sometimes when I have the outside food, okay, so my stomach is not ready to accept that. I feel acidic conditions after eating those food items and like एक जलन सी होती है and I vomited that. Okay. After drinking too much of cold drink. Okay. Shreyanshi, what about others? You can tell yours. Sanvi, will you? Deepika, Mrunmayee, Pranav? Okay. The stomach. The stomach is thick walled bag. एक थैली की तरह रहता है हमारा stomach. Its shape is like a flattened J and it is the widest part of alimentary canal. एक flat J shape का रहता है stomach and elementary canal का सबसे बड़ा part is our stomach. It receives food from the food pipe at one end and opens into small intestine at the other. ये जो हमारा stomach है वो फूड पाइप से एक एंड से फूड लेता रहता है एंड दूसरे एंड से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जुड़ा हुआ रहता है. The inner lining of stomach secretes mucus, hydrochloric acid and digestive juices. स्टमक की जो भी इनर वॉल रहती है, जो इनर लाइनिंग रहती है, उससे म्यूकस, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस निकलते रहते हैं. द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक. जो म्यूकस लेयर है वो स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है. द एसिड किल्स मेनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द फूड. जो भी खाने के साथ बहुत सारे बैक्टीरिया जाते हैं उनको मारने का काम एसिड करता है एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट. और जो भी हमारा स्टमक है उसका जो मीडियम है उसको एसिडिक रखता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड जिससे कि डाइजेस्टिव जूसेस जल्दी से एक्ट करते हैं एंड डाइजेशन में इजीनेस होती है. द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. जो भी प्रोटीन्स है, जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है उन्हें सिंपलर डाइजेस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम हमारे पेट में पेट में रहने वाले डाइजेस्टिव जूसेस करते हैं. द स्मॉल इंटेस्टाइन. The small intestine is highly coiled and is about 7.5 meters long. Okay, जो small intestine रहता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट किया हुआ ऐसे कुछ हम जैसे कपड़े थैले में भरते हैं ना, बहुत ज़्यादा रखने होते हैं तो कॉम्पैक्ट कर करके भरते हैं.
वैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन को कॉम्पैक्ट कर करके भरा हुआ होता है अंदर, लेकिन वो सबसे लंबा है, उसकी लंबाई 7.5 मीटर्स लॉन्ग है। इट रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम द लीवर एंड द पैंक्रियास। लीवर और पैंक्रियास के जो भी सिक्रेट्स होते हैं, जो भी जूसेस होते हैं, वो रिसीव करता है। एंड उसकी जो वॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो भी कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करती है। Liver is a reddish brown gland situated in the upper part of abdomen in the right side. एब्डोमेन के राइट अपर पार्ट में राइट साइड में एक ओके यहाँ पे यस दिखाया गया एक ग्लैंड होती है, उसे लीवर कहा जाता है। यू कैन सी। एंड इट इज अ लार्जेस्ट ग्लैंड, ये सबसे बड़ी ग्लैंड होती है बॉडी में। इट सीक्रेट बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। और वो लीवर बाइल जूस सिक्रेट करता है, जिसे एक थैले में रखा जाता है, उस थैले को, उस सैक को गॉल ब्लैडर कहते हैं। द बाइल प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। और ये जो बाइल जूस है, वो जो हम फैटी सब्सटेंसेस खाते हैं ना, उनको उनके डाइजेशन में हेल्प, ये देखिए, ये लीवर है और उसके नीचे गॉल ब्लैडर है। ओके, यू कैन सी। तो जो फैटी सब्सटेंसेस हम खाते हैं, उनको हमारी बॉडी में सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने का काम, उनके डाइजेशन का काम ये बाइल जूस करता है। द पैंक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो स्टमक। स्टमक के नीचे, एग्जैक्ट नीचे पैंक्रियाज होता है, जो क्रीम कलर ग्लैंड है। पैंक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन एंड चेंजेस देम टू सिंपलर फॉर्म। हमारे खाने में जो भी कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स हम लेते हैं, उनको डाइजेस्ट करने का काम ये पैंक्रियाटिक जूस करता है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड टिल हियर? Yes, everyone. Seventh standard. Have you understood till here? Please let me know. Okay. The partly digested food now reaches the lower part of small intestine, where the intestinal juice completes the digestion of all component of food. तो जो भी पार्टली डाइजेस्टेड फूड है, वो अभी स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में चला जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी इंटेस्टिनल जूस प्रेजेंट रहते हैं, वो ये सारे कंपोनेंट का डाइजेशन करते हैं। The carbohydrate get broken into simpler sugar like glucose, fats or fatty acid and glycerol. तो कार्बोहाइड्रेट्स जो भी हम राइस या फिर ग्रेन्स से मिलते हैं, खाते हैं उनको, उनका बॉडी में जाके सिंपलर शुगर में कन्वर्जन होता है। शुगर, ग्लूकोज, फैट्स एंड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होते हैं। ओके, ये सेवेंथ स्टैंडर्ड। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. We will have other process, the more process of digestion in the next lecture. Okay? Yes, understood. Seventh standard. Have you understood? Okay. So fifth and seventh standard, whatever we have learned today, is there any doubt or anything you want to ask me? No, ma'am. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Okay. So we are going to stop over here for today. You can leave. Bye bye. Good night. Yes, everyone, you can leave the class now.